Okay. I hope doctor's audibility and visibility is perfectly clear to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Let us start with a new topic. In the last few lectures, we have completed plant-water relationship. I'll take the quick review of that chapter and then we'll switch to mineral nutrition. As far as plant-water relationship is concerned, there were few concepts, very important concepts were there. First, we learned in last lecture, plant-water relationship, or I should say the chapter's name was transport in plants, water transport in plants. First, we completed the means or modes of transportation. Is it? Doctors? Yes, sir. Yes, sir. जिसमें हमने पढ़ा सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस and active transport. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Yes, sir. Perfect. The second part that we done, that was porins and aquaporins. That we know. Porins are the pores of proteins. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Perfect. After that, co-transportation. There were three methods of co-transportation. What was those methods? Sympod, Unipod, antipod, antipod, and antipod. Unipod, sympod, and antipod. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. yes, sir. Perfect. After that, we studied that after co-transportation, we studied the potentials. Three potentials were there. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That was water potential. One was Solute. Solid potential. and one was Pressure pressure potential. Potential. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. After that, we studied the symplast and apoplast. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Which one was the faster? Apoplast. Why it was faster? Because it was through cell wall. Because it goes through Because cytoplasm. yes, the transportation through wall to wall. Therefore, it was faster. And there were no hurdles from protoplasm or cytoplasm, which was taking place in symplast. Perfect. After that, long distance transport. Is it? Yes, sir. Long distance transport, we studied two force. One was pull force and one was Push force. Push force. push force. Agree? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Pull force and push force. In pull force, there was transpiration pull. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Transpiration pull. And in push force, there was a guttation. Is it? Yes, sir. Yes, sir. We studied a major difference between these two, transpiration and guttation. The major difference between transpiration and guttation was, in transpiration, it was in the form of vapors. Is it? Yes, sir. Yes. Sir. In the guttation, it was in the form of Liquid. liquid. In the form of vapors, जब ये vapor transpiration था, it was in daytime. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Was it in night time? Night. During transpiration, it was a negative pressure, and the guttation was Positive. Positive. positive pressure. Perfect. Positive pressure. It was from Hydathode. Is it? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. It is from the leaf surface. Is it? Yes, sir. Perfect. बच्चों मजा आ रहा है ना स्मार्ट बोर्ड पे? अच्छा लग रहा है ना?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. क्योंकि कलरफुल भी हम लिख सकते हैं ना, बायोलॉजी का कलरफुल मटेरियल रहेगा तो वी कैन राइट. ओके, नो प्रॉब्लम. सो पुल हो गया, पुश हो गया, ट्रांसप्रेशन पुल हो गया. आफ्टर दैट वी स्टडीड I should say, yes, mass flow hypothesis, uptake of minerals and mass flow hypothesis. Is it? Yes, sir. Yes, sir. And in mass flow hypothesis मैंने बहुत बढ़िया एक कंसेप्ट आपको बताया था. This was the source for food and this was Sink. 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 So this was moving from source to sink. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And source पर क्या होता था, जो भी food बना, that food was actively uploaded to phloem. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So phloem was hypertonic. 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 So what we were expecting कि from adjacent xylem water moves into the phloem. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Yes, sir. Yes. Sir. Perfect. After that, we studied that when this phloem water was moving from xylem to phloem, the pressure potential at phloem increases. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So from higher water potential to lower water potential, lower pressure potential, it was moving. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. जहाँ के प्रेशर पोटेंशियल थोड़ा कम था, जैसे यहाँ तक पहुंचा प्रेशर पोटेंशियल, फ्लोएम ने क्या किया, एडजेसेंट फ्लोएम ने जाइलम को वो वाटर वापस कर दिया जो उसने पहले लिया था. This water is back to xylem. Is it? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. This what we were expecting कि xylem में पानी आ जाए तो इसका वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए और ये सोर्स की तरफ चला जाए जहां पर फिर से वो फूड सिंथेसिस कर पाए. Is it? Yes. Yes, sir. बच्चों कंप्लीट रिव्यू समझ में आया क्या आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और एक जो ट्रांसपीरेशन पुल बन रहा था वो सक्शन प्रेशर इसका इस पर यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और इसके पीछे फोर्स था कोहेसिव एंड Adhesive. adhesive. कोहेसिव किसके बीच में था? Water to Water water. to water molecule. Water to water. वाटर टू वाटर. एडहेसिव किसके बीच में था? Water to Water 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 to all the molecule. minerals. डन. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. परफेक्ट. तो ये तो सारा क्विक रिव्यू हो गया. नाउ वी आर मूविंग कि व्हाट द मटेरियल दैट इज मूविंग अलोंग विद xylem to the upside or to the leaves. What material xylem is exactly carrying along with water? Definitely this xylem has to carry some mineral nutrient. Then only the leaf will synthesize the food. Agreed? Yes, Yes, sir. So which type of minerals are they? Which type of nutritions are this? Are they? Which xylem is carrying to the leaf surface, and then leaf by utilizing those raw material, those minerals, the leaf is synthesizing the food in the form of carbohydrate. So the next chapter is mineral nutrition. Please write the heading mineral nutrition.
The heading is mineral nutrition. Be ready with your NCRTs, students. Yes, sir. Perfect. What topics we will cover in this chapter? First, I am going to write those topics. Number 1, we will study methods to study mineral requirements. Methods to study mineral requirement. किसी प्लांट को मिनरल का कितना रिक्वायरमेंट है वो स्टडी करना. दैट इज व्हाट दोज मेथड्स. जिसमें आपका सिलेबस में एक मेथड दी गई, दैट इज हाइड्रोपोनिक्स. आपको एक मेथड दी गई है, दिस इज हाइड्रोपोनिक्स. ओके. सेकेंड बार हम पढ़ेंगे एसेंशियलिटी, essential minerals and the criteria of essentiality. The criteria of essentiality. Visibility is clear, doctors? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Third, we will go for types of nutrient. जो obviously दो टाइप के हैं. Which one? Macro and micro. Macro and micro nutrients. Different type के macro और micro nutrients हम पढ़ेंगे and their role. The next will be deficiency symptom. Deficiency symptoms. सेम टाइम किसी की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो ये भी तो हो सकता है कि वो डेफिशिएंसी किसी और की ना हो लेकिन किसी की टॉक्सिसिटी हो. टॉक्सिसिटी सिम्टम्स, ये दोनों वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों. Efficiency symptom, what we expect? Less concentration than requirement, or this is more concentration than requirement. Understood? Yes, Yes, sir. sir. Perfect. और एक पढ़ना है बच्चों हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. This is नाइट्रोजन फिक्सेशन. यही एक टॉपिक इसमें है जो मुझे आपको बहुत डिटेल में और कंसेप्चुअली पढ़ाना है. और 7th वाला जो रहेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद, डेफिनेटली आई थिंक द फेट ऑफ अमोनिया. क्योंकि फिक्सेशन का मतलब होता है नाइट्रोजन टू अमोनिया. दिस इज फिक्सेशन. तो फिर फेट ऑफ अमोनिया. So those 7 topics will be there. Please note, we'll start one by one.
Noted, doctors? No, sir. Yes, sir. I hope it's noted. Yes, sir. Should I start? Yes, Yes, sir. sir. Let us start with the first. This is what? Methods to study mineral requirement, that is hydroponics. So, heading डालिए hydroponics. हेडिंग डालिए बच्चों हाइड्रोपोनिक्स. And one diagram is given in your NCERT. Either I can share this. Yes, I can share this. Or simply we can write a statement. Please note. Statement note कीजिए तब तक मैं image share कर रहा हूं. Please write a note. The growth of plants. The growth of plants till maturity in a defined nutrient solution in complete absence of soil, is known as hydroponics. Can you repeat? Noted, Sir, doctors? please. हाँ बोलिए बोलिए. Sir, can you please repeat the statement? यस एनसीईआरटी से लिखा है बच्चों. स्टेटमेंट है, लिख भी देता हूं. Growth of a plant till maturity in a nutrient solution. दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. And in a soil-free medium is nothing other than hydroponics. सिंपल है बच्चों. हाइड्रोपोनिक्स मतलब पानी में ग्रो करना है. न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन आपने बना लिया भाई. जो मटेरियल उसे सॉइल से मिलना है, जो भी प्लांट को सॉइल से मिलना है, रूट जो सॉइल से ले रही है. अभी अपन ने देखा लास्ट चैप्टर में प्लांट वाटर रिलेशनशिप. सारा न्यूट्रिएंट सारा मिनरल वो सॉइल से लेना. एक्टिवली लेना, पैसिवली लेना, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट लेना सॉइल से. तो जितने भी मिनरल न्यूट्रिएंट है यार, उसका सॉल्यूशन बनाकर पानी में रख दो ना. हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा ना. क्यों होल्ड कर भाई? रुकेगा कैसे? रूट होल्ड किसको करेगा? या रूट को कौन होल्ड करेगा जिससे प्लांट का स्टेम डायरेक्ट पोजीशन में खड़ा रह पाए? तो एटलीस्ट मैच्योरिटी तक, जब तक कि वो मैच्योर हो रहा है तब तक उसमें किया जा सकता है हाइड्रोपोनिक्स, वाटर में किया जाने वाला कल्चर. सो दिस इज व्हाट सॉइल फ्री कल्चर. अंडरस्टूड? Yes, sir. परफेक्ट. अब उसके लिए एक आपको
आपको एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया गया, एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया गया है सिंपल, जस्ट चेक दैट डायग्राम. इन दिस डायग्राम, funnel for adding nutrient, diagram of a typical setup for nutrient solution culture. एक तरफ aeration tube रखी गई है. If I can draw this, there is a plant growing in like this. There is an aeration tube जहां से एयर पास किया जा रहा है. इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर कॉटन लगा दिया गया है ताकि थोड़ा सा तो भी वो प्लांट वहां पर होल्ड हो सके. दिस इज कॉटन. परफेक्ट. और न्यूट्रिएंट डालने के लिए यहां से एक अलग न्यूट्रिएंट सप्लाई कर दिया जाए. न्यूट्रिएंट सप्लाई. बच्चों को समझे? एपरेटस समझे? Yes, sir. अरे सिंपल है. आपको वाटर में न्यूट्रिएंट डाला गया. सिंस इट इज हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स दैट मींस वाटर में सारे न्यूट्रिएंट ऐड कर दिए गए. भाई जो सॉइल से लेना है, लेना तो ऑस्मोसिस से ही है ना, और वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो लास्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा. लेना जब उसे ऑस्मोसिस से ही है, वाटर के थ्रू ही लेना है, तो उसे हाइड्रोपोनिक्स ही कर दिया जाए ना. इसको वाटर में न्यूट्रिएंट मिला दिए गए, थोड़ा सा एयरेशन दिया गया, अदरवाइज रूट को तो सॉइल के पार्टिकल में जो ऑक्सीजन बाइंड है वहां से मिल जाती है, तो ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया गया एंड प्लांट्स मैच्योरिटी तक. उसके बाद तो बहुत ज्यादा स्टेम यदि गर्थ बढ़ जाए तो डेफिनेटली उसे आपको सॉइल में प्लांट करना पड़ेगा, बट इनिशियली तो उससे वाटर पे किया जा सकता है. वाटर आई शुड से बेटर सॉइल फ्री मीडियम में, एक्वाटिक सिस्टम में किया जा सकता है. राइट? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आपको ये भी बताया गया जिसमें आपको डेफिनेटली लर्न करना है. इसमें पूछा गया है उसी पैराग्राफ में, दिस मेथड रिक्वायर प्यूरिफाइड वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट्स एंड ऑक्सीजन. व्हाई ऑक्सीजन इज नीडेड ये भी पूछा गया आपसे. और पूछा गया है कि व्हाट वुड हैपन इफ सॉल्यूशन वर पुअरली एरेटेड. यदि ये ऑक्सीजन नहीं दी गई तो इस ऑक्सीजन से क्या फर्क पड़ेगा. डेफिनेटली रूट विल नॉट सर्वाइव. यदि रूट सेल सर्वाइव नहीं करेंगे तो ये ग्रो किस बात से करेगा, ये एब्जॉर्ब क्या करेगा, क्योंकि एब्जॉर्ब करने का एक ही तरीका है एंड दैट इज व्हाट, रूट्स. परफेक्ट. इसके लिए यहां पर इसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, वो भी आपने नोट करने चाहिए. एग्जांपल्स लाइक कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, उसमें टोमेटो, और क्या दिए बोलो टोमेटो के साथ, बोलिए. Seedless cucumber Seedless and cucumber. lettuce. Seedless cucumber and Lettuce. what is lettuce? Anyone? What is lettuce?
क्या ही कर रहे हो बच्चों? अरे एनीवन लेट्यूस? तो कैबेज के पत्ते जैसा होता है। यस, बिग लीफी वेजिटेबल। ओके, ये हो गया आपका। अब दूसरा पॉइंट अपना देखिए। द सेकंड पॉइंट, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट आई थिंक इट वाज criteria for essentiality, is it? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों कल का सेशन अटेंड किया आप लोगों ने? Yes, Yes. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. How was this? Sir, excellent. Sir, very nice. अरे ठीक लगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं, लेकिन कल कि सर कोई कमेंट हो, कोई कॉम्प्लीमेंट हो, कुछ इंप्रूवमेंट हो, कोई कुछ बोला ही नहीं। एनीवेज बच्चों, बोलना चाहिए, कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए, इंटरेक्शन होते रहना चाहिए। एनीवेज, क्राइटेरिया की बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये कैसे पता लगाओगे कि कोई मिनरल एलिमेंट किसी प्लांट के लिए कितना रिक्वायर्ड है? भाई कैसे पता लग सकता? प्लांट बोल तो सकता नहीं कि मुझे ये चाहिए, तो ये कैसा पता लगे? तो यही किया जा सकता है कि एक बार इस हाइड्रोपोनिक्स की जरूरत भी क्यों पड़ी, इसका भी बड़ा बढ़िया सा लॉजिक। एक बार इस मिनरल न्यूट्रिएंट के सॉल्यूशन में, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो आप डाल रहे हैं, इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में एक्स डाल दीजिए, वाई मत डालिए। अगली बार वाई डाल दीजिए, एक्स मत डालिए। आपको पता चल जाएगा कि यार ग्रोथ ऑप्टिमम हो रही है, फ्लावरिंग अच्छा हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है और मेटाबॉलिज्म अच्छा चल रहा है। यदि एक्स की एब्सेंस में चल रहा है तो ठीक है, एक्स इज नॉट एसेंशियल। बट यदि वाई की एब्सेंस में चल रहा है तो वाई इज नॉट एसेंशियल। बट यदि ऐसा हो रहा है कि दोनों जब मिलाकर आप डालते हैं तभी होता है, तो एक्स एंड वाई बोथ आर एसेंशियल। यस और नो डॉक्टर्स? Yes, sir. Yes, sir. मतलब सिंपल सी बात ऐसी यार, उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई यदि हम खाने में दाल चावल सब्जी रोटी खा रहे हैं, दिन 2 दिन 4 दिन रोटी ना दी जाए, फिर भी यार ग्रोथ अच्छी हो रही है, फिर भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो मान लिया जाएगा रोटी इज नॉट एसेंशियल। यदि दाल चावल सब्जी रोटी ब्रेड पकौड़ा ये सब चल रहा हो, ब्रेड और पकौड़ा कुछ दिन ना दिया जाए तो फिर भी काम बढ़िया चलता रहे, दैट मींस ब्रेड पकौड़ा क्या हुआ? क्या हुआ? Non essential. नॉन एसेंशियल। तो क्राइटेरिया एसेंशियलिटी में सबसे पहला ही क्राइटेरिया दिया गया है, नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ। नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग, लिख रहे हैं मेरे साथ, सपोर्टिंग Yes, sir. normal growth, necessary for supporting normal growth। नंबर 2, नॉर्मल ग्रोथ के लिए जरूरी होना चाहिए, और एक जरूरी है एंड रिप्रोडक्शन, राइट? चलिए, the second one is the element must not be replaceable। जो मैंने आपसे कहा, यदि यार ऐसा हुआ कि आपकी रिक्वायरमेंट है दाल चावल सब्जी रोटी ब्रेड पकोड़ा, और यदि ब्रेड पकोड़ा की जगह पनीर पकोड़ा रख दिया जाता है, ब्रेड पकोड़ा की जगह पनीर पकोड़ा रख दिया जाता है और काम तब भी अच्छा चल रहा है, यानी किसी ने उसको रिप्लेस कर दिया, तो मतलब जिसको रिप्लेस कर दिया वो नॉन एसेंशियल। अग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. घर में मम्मी पापा भाई बहन दीदी मौसी चाची नानी दादी सब है, लेकिन यार बड़े भैया के नहीं रहने से, बड़े भैया कहीं और पढ़ने चले गए, और बड़े भैया के नहीं रहने से यदि काम अटक गए हैं, तो बड़े भैया कैसे हुए फिर? Essential. Essential.
भैया कहीं बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली पढ़ने चले गए और फिर भी घर का काम व्यवस्थित चल रहा है, मतलब फिर वो एलिमेंट क्या हुआ? Non-essential. Non-essential. Essential. परफेक्ट। और तीसरा पॉइंट बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज must have a direct involvement in metabolism। और इस पे सीधा सीधा नीट का सवाल आने वाला है, 3 के साथ एक चौथा दे दिया जाएगा या गलत दे दिया जाएगा। एलिमेंट मस्ट बी रिप्लेसेबल, नॉट वर्ड छूट गया और हमारी गलती हो जाए, ऐसा गड़बड़ मत कीजिएगा दोस्तों। इज इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बेस्ड ऑन दिस, ये तो हो गया आपका क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। अगला पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए दोस्तों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने आपसे कहा ना, आई एम एंजॉइंग टीचिंग ऑन स्मार्ट बोर्ड, बट सेम विथ यू, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर वो आप स्लाइड को ऐड क्यों नहीं करते? ये यहां पर ना यस सर। Yes, sir. स्लाइड को ऐड भी कर सकता हूं, बट मैं क्या चाह रहा हूं, जब रिव्यू करने का नंबर आए ना, समरी का नंबर, तो मैं सबको जूम इन करके मैं एक साथ ले आऊं और एक दिन का पूरा मैं एक ही स्लाइड पर बता दूं। यस यस समझा? यस सर। करता हूं, कोशिश करता हूं डॉक्टर, मैं भी सीख रहा हूं, करते हैं कुछ कोशिश। ओके चलिए, पॉइंट नंबर 3 इज, what was the point number 3? Types of nutrients. Types of nutrients. Types of Types of nutrients, दो कैटेगरी कौन कौन सी? Macro and Macro. micro. Micro and micro. चैप्टर कोई बहुत टफ चैप्टर नहीं है बच्चों, बहुत सा इजी चैप्टर, बट लर्निंग चैप्टर, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब ये तो डेफिनेटली, और उसका शायद इंपॉर्टेंस या रोल भी था ना, इज इट? Yes, sir. अब ये तो क्या है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा मैं बस आपको बता दे रहा हूं कि क्या होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट और क्या होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। परफेक्ट। अब आप यहीं पर हेडिंग डाला होगा आपने, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट एंड देयर रोल, दो कर दीजिए, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो के आगे लिख देते हैं present in plant tissue in large amount like 10 millimole per kg, 10 millimole per kg। यदि इससे ज्यादा है तो वो मैक्रो न्यूट्रिएंट। प्लांट के टिश्यू, वो प्लांट के टिश्यू में रहना जरूरी है, प्लांट के टिश्यू में यदि उससे ज्यादा है तो दैट विल बी मैक्रो न्यूट्रिएंट। और यदि ये 10 मिलीमोल पर केजी से कम है, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी, यदि वो कम है तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट में यहां पर दिए गए हैं कौन कौन से, मैं ऐसा कर लेता हूं, here we can write macro versus मैक्रो का फर्स्ट पॉइंट हो गया मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी, इसका पहला पॉइंट हो गया लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी। अग्रीड? Yes, sir. Yes. yes, sir. इसका सेकंड पॉइंट हो गया
द सेकंड पॉइंट इज इसके हो गए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्या कह दिए देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, phosphorus, sulfur, Potassium. potassium, और calcium and magnesium. Magnesium. और माइक्रो में दिए लगभग आयरन, मैंगनीज, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, और बोलिए Molybdenum, मॉलिब्डेनम, और बोलिए, zinc, boron, और बोलिए, Chlorine and nickel. chlorine and nickel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक को छूट गया, 17 होते हैं, एक को छूट गया है। बोरॉन छूट गया ना बच्चों, बोरॉन रहेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है और ये 8 है। अब एक बात और समझिए, आप तीनों टाइप के चैप्टर पढ़ चुके हैं मुझसे। एक था माइक्रो मॉलिक्यूल, जिसमें आपको पढ़ना था बायो मैक्रो और बायो माइक्रो, इज इट? Yes, sir. लेकिन उसमें मैक्रो और माइक्रो आपने क्वांटिटी के बेस पे नहीं लिया था, आपने लिया था उसको मॉलिक्यूलर साइज के बेस पे। Size. इसमें भी इट वाज लेस देन 800 डाल्टन, वो कौन था? माइक्रो। Micro. और एक चैप्टर आपने मुझसे और पढ़ लिया ग्लोरी मैडम, वो है डाइजेशन, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, इज इट? Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब यार मैक्रो न्यूट्रिएंट डाइजेशन में आए और प्लांट के केस में आए तो कहानी अलग अलग। डाइजेशन में मैक्रो न्यूट्रिएंट वो थे जो डायरेक्ट एनर्जी रिलीज कर रहे थे, लाइक लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, याद आया होगा, एलपीसी। Yes, sir. Yes, sir. और माइक्रो न्यूट्रिएंट बच्चों वो थे जो उस लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी निकालने के लिए जरूरी होते थे, लाइक विटामिन एंड मिनरल्स। यानी Yes, sir. हमारे केस में डाइजेशन की कहानी आई मैक्रो माइक्रो, तो एनर्जी प्रोवाइडर वाली बात होगी। प्लांट के केस में आया मैक्रो माइक्रो, तो 10 मिलीमोल से ज्यादा और 10 मिलीमोल से कम वाली बात आएगी। बायोमोलिक्यूल के केस में आया मैक्रो और माइक्रो, तो 800 डाल्टन से कम या ज्यादा वाली बात आएगी। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब मैं यहाँ ये लिख सकता हूं कि मॉलिक्यूल की कैटेगरी को दो इसमें मैंने डिवाइड किया, मैक्रो और माइक्रो। अब यदि ये मैक्रो और माइक्रो एनिमल के केस में आया तो यहां पर 3 टाइप हो गए। एनिमल के केस में यदि मैं बात करूं तो आपको पढ़ना पड़ेगा एनर्जी, इसको ऐसे नहीं बना पाएंगे, हमें बनाना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स। याद रखने के लिए एनिमल्स, प्लांट्स और बायोमॉलिक्यूल्स। एनिमल्स के केस में किस कैटेगरी में रखेंगे आप? बोलिए। एनिमल्स का बायोमॉलिक्यूल मैक्रो और माइक्रो आया तो क्या करेंगे? बोलो, अरे बोलो। एक जो बच्चों क्या देगा? एनर्जी, और एक क्या होगा? नॉन एनर्जी। Non-energy. एनर्जी वाला कौन होगा? एलपीसी। LPC. प्लांट के केस में अभी मैंने बताया जो 10 मिलीमोल से
जो 10 मिलीमोल से ज्यादा होगा वो कौन? मैक्रो Macro. और जो 10 मिलीमोल से कम होगा वो कौन? माइक्रो Micro. मतलब देख रहे हो सबके मैक्रो माइक्रो अलग हो गए। इसमें क्या होगा, जो 800 डाल्टन से ज्यादा होगा वो क्या? Macro. मैक्रो और जो 800 डाल्टन से कम होगा वो क्या? माइक्रो Micro. बस इसीलिए गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको दोस्तों ये लिखा दिया, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि बच्चे क्लास में गड़बड़ कर देते हैं। अब हमें ये पता है ये मैक्रो और ये मैक्रो और ये मैक्रो तीनों अलग अलग था। इज इट? Yes, sir. Yes, sir. तो एक आप देख रहे हैं एनिमल के केस में, एक देख रहे हैं प्लांट के केस में, और एक देख रहे हैं जनरल बायोलॉजी। डन? यस सर Yes, sir. ओके, No, sir. Yes, sir. प्लीज नोट करो, फिर मैं उसको शिफ्ट करूं। डन सर डन? यस सर Yes, sir. बस अपने मुद्दे पर आते हैं। हम बात कर रहे थे मैक्रो और माइक्रो की, ये भी बात हो गई। और कोई? हाँ, इसके अलावा भी एक काम था भाई। Other than those 9 plus 8, 17. Other than those 17, there are some more elements like sodium, silicon. Is it? Other than these, sodium, silicon, और क्या दिए? और क्या दिए? कोबाल्ट, सेलेनियम, ये कुछ ऐसे हैं जो हायर प्लांट्स के द्वारा रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये मैक्रो और माइक्रो की कैटेगरी तो हो गई बच्चों, उसकी जो अमाउंट के बेस पर आपने कर दी। नेक्स्ट यदि मैं आपसे कहूं ओके, एक और कैटेगरी आपकी दी गई है बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। इसेंशियल एलिमेंट जो है इसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी दी गई है, दैट इज बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। बेस्ड ऑन essentiality or the biochemical role तीन कैटेगरीज बना दी गई। कैसे तीन कैटेगरीज बना दी गई? फर्स्ट कैटेगरी is 4 categories in fact. The first category is structural elements. Structural elements. The second one is एनर्जी रिलेटेड बहुत बढ़िया, कौन बोला? श्रावणी ठाकरे बहुत बढ़िया, एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट्स। The third one is, बोलिए। Active or inhibit of enzymes. Activator and inhibitors. The fourth one is Maintain osmosis.
ऑस्मोटिक रेगुलेटर्स। डन। अब इसको समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। बायोकेमिकल फंक्शंस, उसके रोल यदि हम देख रहे हैं बच्चों, तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट तो वो है जो उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। जो स्ट्रक्चर बनाएंगे मतलब डेफिनेटली ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स जो उसके स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, दैट मींस उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, जो प्लांट का टिश्यू उसको बनाने में यूज हो रहा है। ऐसा कंपोनेंट आपके इसमें दिया गया है, व्हाट? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यही लगेगा ना। अरे मेम्ब्रेन होगी तो लिपिड और प्रोटीन की होगी, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो बेसिक कंपोनेंट है, ये तो हर किसी सेल में लगने ही लगने। एनर्जी रिलेटेड की मैं बात करूं तो आपको सबको ध्यान होगा, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस। फास्फोरस। अरे एटीपी क्या है? व्हाट इज एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट। तो फास्फोरस तो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड ही हुआ उसका, इज इट? यस सर। और मैग्नीशियम है जो उसकी एनर्जी बना रहा है, किसमें? क्लोरोफिल के केस में। एक्टिवेटर और इनहिबिटर भी आपने पढ़े हुए हैं, अभी नहीं पढ़े क्योंकि फोटोसिंथेसिस आपका होना है। इनहिबिटर और एक्टिवेटर में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया। एंजाइम हमने पढ़ा है कई सारे, इसमें आपने पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम और जिंक हमने कोफैक्टर और कोएंजाइम्स की तरह पढ़े हैं, इज इट? यस सर। यस सर। ओके, सो मैग्नीशियम और जिंक ये इनहिबिटर और एक्टिवेटर की तरह एंजाइम्स में काम आते हैं। फोर्थ वन इज, अभी पढ़ा है लास्ट लेक्चर में पढ़ा है आपने, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन सा आयन कंट्रोल करता था? पोटेशियम आयन। पोटेशियम। पोटेशियम। और कैसे control करता था? कहां पढ़ा था आपने पोटेशियम? सर के मैलिट थ्योरी। परफेक्ट, कौन बोला? सर अंजलि। पोटेशियम मैलेट थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी थी, जिसकी वजह से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग रेगुलेट होती थी, इज इट? यस सर। यस सर। परफेक्ट। बस अब दोस्तों इसके बाद का जो पार्ट है ना, इसके बाद का जो पार्ट है, एक एक का रोल, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये डेफिनेटली मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि आपको पढ़ना है, और ऐसा भी नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट भी है, बट यार उसको आपको दो दो पॉइंट सबके लिखने हैं, तो असाइनमेंट में यहां लिख दे रहा हूं, असाइनमेंट। आपको लिखना है, क्या क्या पॉइंट लिखने हैं फॉर ईच एलिमेंट। नंबर 1 आपको लिखना है, फॉर ईच की बात कर रहा हूं मैं, फॉर ईच मिनरल एलिमेंट। और ईच मिनरल एलिमेंट आपको क्या क्या लिखना है वो मैं बता दे रहा हूं। नंबर 1, विजिबिलिटी हो रही है बच्चों ब्लू से कि नहीं हो रही है? क्लियर। Yes, sir. ओके, पहला आपको लिखना है
फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब कार्बन है तो किस फॉर्म में, हाइड्रोजन है तो किस फॉर्म में, नाइट्रोजन है तो किस फॉर्म में, वो एब्जॉर्ब हो, जैसे नाइट्रेट नाइट्राइट में, फास्फोरस फॉस्फेट में है, वो लिखना है। दूसरा बायोलॉजिकल रोल, तीसरा डेफिशिएंसी या सेम टाइम पर टॉक्सिसिटी, डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी, या तो डेफिशिएंसी हो या तो टॉक्सिसिटी हो, वो आपको लिखना है। बस ये 3 चीजें आपको लिखनी है। तो उसके लिए एक काम ये किया जा सकता है, बड़े से पेज को जो ऐसा जो पेज होता है आपका, उसको कंप्लीट पूरा पेज खोल लिया जाए रजिस्टर का, और यहीं पर कॉलम बना दिया ताकि काम बढ़िया हो जाए। नंबर 1 हो जाए आपका सीरियल नंबर, नंबर 2 हो जाए आपका मिनरल, नंबर 3 हो जाए आपका फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 हो जाए आपका रोल जो ज्यादा बड़ा है, रोल, और चौथा हो जाए आपका प्लस या माइनस, मतलब डिफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी। समझे? यस सर। ये आपका असाइनमेंट रहेगा दोस्तों, और इसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाना है डेफिशिएंसी सिम्टम और टॉक्सिसिटी। तो ये थोड़ी सी समझने वाली बात, जिसके लिए मुझे स्क्रीन का जरूरत शायद ना पड़े। प्लीज नोट, और मैं आगे का पढ़ा रहा हूँ डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी। Noted, doctors? Yes, Sir, what sir. is that last one? Yes sir. Last point is plus. Plus मतलब क्या हुआ? Plus is what? Toxicity. Toxicity. Minus is what? Deficiency. Deficiency. Efficiency. और यही दो शायद अपना देखेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो यही दो है। इज इट? Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग ना, टॉक्सिसिटी और डेफिशिएंसी। वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चों कि टॉक्सिसिटी मतलब क्या होगा, जितना कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है। भाई सबका आपको पता है 10 मिलीमोल पर केजी से ज्यादा और 10 मिलीमोल पर केजी से कम। ज्यादा लगता है तो वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, कम लगता है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट। लेकिन यदि ऐसा हो कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है 10 मिलीमोल पर केजी से वो 15 मिलीमोल पर केजी अवेलेबल हो रहा है, या उसमें ज्यादा अमाउंट में मिल जा रहा है, तो यार वो टॉक्सिक होता जा रहा है। या यूं समझ लें कि जो 10 मिलीमोल पर केजी से ज्यादा लगने वाला मैक्रो है वो 5 या 6 मिलीमोल पर केजी ही अवेलेबल हो पा रहा है, तो वो डेफिशिएंसी हो गई। तो डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी ये दो सिम्टम्स हमें पढ़ने, शुद्ध भाषा में। समझे क्या? Yes sir. परफेक्ट। शुड आई स्टार्ट? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ओके, अब दो चीजें समझिए। ऐसा कोई कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा किसी एक्स एलिमेंट का ऐसा कोई कॉन्सेंट्रेशन जिसके नीचे प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो जाए। सपोज मुझे दही खाने की आदत है, मुझे कर्ड चाहिए क्योंकि उसमें मुझे विटामिन मिलता है। यदि मेरी ग्रोथ या मेरे डाइट में से, मेरे न्यूट्रिएंट में से कर्ड को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, तो डेफिनेटली उसका बैड इफेक्ट मेरी ग्रोथ पर आएगा। यस और नो? Yes sir. Yes sir. लेकिन मान लेते हैं कि पूरी तरह से हटाया नहीं गया,
और मुझे उसकी अमाउंट कम दिया गया, मुझे जितना एक कटोरी मुझे दही लगता था, मुझे केवल 1 चम्मच दही रोज दिया गया, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके बाद मेरी ग्रोथ यदि उस दही से डिपेंडेंट है, कर्ड से पे डिपेंडेंट है, तो ग्रोथ पर इफेक्ट आने लगेगा। इज इट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. एक कॉन्सेंट्रेशन ऐसा है बच्चों जहां पर थोड़ा कम मिल रहा है, ठीक है, फाइन, ग्रोथ होती जा रही है, बट यार अमाउंट बहुत ही कम हो गया, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसके नीचे यदि अब और दिया गया तो शायद ग्रोथ रुक जाए, तो ऐसा कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगा क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। डिड यू अंडरस्टैंड द वर्ड? Yes, sir. Yes, sir. इसकी बच्चों मैं डेफिनेशन ही लिखाना चाहूंगा, यहां लिखेंगे डेफिनेशन। इफ, मेरे साथ ही लिखते चलेंगे, इफ supply of an element is limited, if supply of an element is limited, then plant growth is retarded. Agree? Yes, sir. वो तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि अपन ने पढ़ा है ना, एसेंशियल एलिमेंट वही होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, बराबर ना? Yes, sir. एंड यहां पर आपने कम दिया तो प्लांट की ग्रोथ कम पड़ गई, मंद पड़ गई, धीरे धीरे हो रही है, लेकिन द कॉन्सेंट्रेशन below which plant growth is retarded, that is critical concentration. इतना कम दोगे भाई, थोड़ा कम दिया तो डेफिनेटली ग्रोथ कम हो गई, लेकिन एक लेवल ऐसा आएगा जिसके बाद वो प्रोसेस होने लगती है, उसको आप क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। एंड element is said to be deficient below critical concentration. I hope you understood. Yes, sir. सिंपल सा कंसेप्ट है। यदि मैं आपसे कहूं कि सप्लाई ऑफ एन एलिमेंट इज लिमिटेड देन प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड, तो बिल्कुल ठीक। यदि आपने लिमिटेड कर दिया सप्लाई, जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा, तो उसकी ग्रोथ कम हो, तो जो ग्रोथ कम हो गई उसके नीचे का कॉन्सेंट्रेशन, जिस इस पर ग्रोथ कम हो गई है या जितने पे कम हो गई है, वो कंसंट्रेशन, उसके लिए कौन सा कंसंट्रेशन कहलाएगा? Critical Critical concentration. और क्रिटिकल कंसंट्रेशन के नीचे यदि आप उसे देने लगे तो वो कैसा कहलाएगा? Deficient. Deficient. अंडरस्टूड। लेकिन डॉक्टर शिंदे आर देयर? Yes, sir. अब ये समझना पड़ेगा आपको, पूरो भाई, पूरो आर देयर? Yes, sir. पूरो भाई, ये समझना पड़ेगा कि ये डेफिशिएंसी यार दो तरीके की हो सकती है, और यही मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों यहां 101%। हंड्रेड एंड 1% लिख दिया मैंने नीट 2023। क्या लिख दिया मैंने? कि ये डेफिशिएंसी पहले किसकी डेफिशिएंसी कहां दिखेगी? यंग लीव्स में किसकी दिखेगी, और ये मैं आपको बता चुका हूं, और ओल्डर लीव्स में किसकी दिखेगी।
जो मोबिलाइज होगा उसकी किसमें दिखेगी? जो मोबिलाइज्ड एलिमेंट, मैंने आपको उस चैप्टर में भी बताया दोस्तों, यदि कोई एलिमेंट, यार सिंपल सी बात है भाई, यदि कोई लीफ ओल्डर लीफ है और यहां पर कोई नया लीफ ग्रो कर रहा है, तो क्या लगता है आप, यदि कोई मोबिलाइज्ड एलिमेंट है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है एलिमेंट, सपोज हम बात करते हैं फास्फोरस या सल्फर, सल्फर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो वो जो ये पुरानी हो रही लीफ है वहां से निकलकर नई लीफ को मिल जाएगा। यस और नो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो उसकी डिफिशियंसी पहले ओल्डर में आएगी ना। Yes, sir. yes, परफेक्ट। अरे परफेक्ट, सब नहीं समझो तो बोलो, समझे सर। कोई नहीं समझा होगा तो बिंदास बोलो, घबराओ नहीं। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, सही बोलो। समझा सर। समझा yes, सर। sir. Yes. भाई मैंने लिखा, मैंने ये लिख दिया कि ओल्डर लीव्स में पहले किसकी डिफिशियंसी दिखेगी? जो मोबिलाइज्ड है। अब मोबिलाइज्ड एलिमेंट है तो उसकी डिफिशियंसी पहले इसलिए दिखेगी क्योंकि यार वो ओल्डर लीफ से निकलकर नई लीफ में आ जाएगा ना, वो क्यों वहां रुकेगा? वो मोबिलाइज्ड है, वो चला आएगा इधर, उसे तो गिरना ही है, उसे तो फॉल शेड ऑफ होना ही है, तो वो इधर आ जाएगा। लेकिन यदि कोई इमोबिलाइज्ड है, सोचिए ना, immobilized element deficiency can be seen first in what? Younger. भाई क्यों? अरे यार क्योंकि यदि इमोबिलाइज है कैल्शियम, वो यहां से निकल ही नहीं रहा है, वो लीफ के साथ गिर गया लेकिन मोबिलाइज नहीं हुआ क्योंकि वो इमोबिलाइज था। वो लीफ के साथ गिर गया, जो येलोइंग हो रही थी वो लीफ के साथ गिर गया, लेकिन उसने नया बर्ड को नहीं दिया क्योंकि वो इमोबिलाइज था। तो उसकी डिफिशियंसी पहले किसमें दिखेगी? Young. Younger. Please. 101% बच्चों आप समझ के चलो, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नीट 2023। मेरी बात ध्यान रखना, वो मिलेगा आपको वहां पर, वो आएगा क्वेश्चन दिखेगा, समझे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब लास्ट उसका पार्ट है टॉक्सिसिटी वाला पार्ट। टॉक्सिसिटी, ये नोट कर लिया बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. यहां पर भी डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ऐसा लिखता हूं मैं, ऑल्दो micronutrients required in very less amount, although micronutrients required in very less amount, but their moderate increase or moderate decrease, थोड़ा भी ज्यादा, भाई वैसे ही कम लग रहा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है वैसे ही कम लग रहा है, थोड़ा भी ज्यादा या थोड़ा भी कम हो गया तो वो जबरदस्त तरीके से टॉक्सिक हो जाता है, लीड्स टू टॉक्सिसिटी। अंडरस्टूड? Yes, sir. अब एग्जैक्टली मैं टॉक्सिसिटी की बात करूं
तो टॉक्सिसिटी किसको कहा गया वो भी लिखना चाहिए, इसी में लिखना चाहिए आप। मैं सर्कल करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं टॉक्सिसिटी बात, जैसे इसमें मैंने बताया कि पहले डेफिशिएंसी के पहले मैंने बताया ग्रोथ रिटार्डेंट, उससे कम हो जाए तो वो डेफिशिएंट कहलाएगा, और डेफिशिएंसी किस में आएगी वो भी मैंने बताया। अब टॉक्सिसिटी की बात करें तो टॉक्सिसिटी का मतलब इन्होंने दिया हुआ है यदि किसी टिश्यू का ड्राई वेट, इफ एनी plant tissue dry weight is reduces या reduced to 10%, यदि किसी मटेरियल की वजह से, if the plant tissue, ऐसा मैंने लिखना चाहिए, if the plant tissue dry weight is reduced to 10%, then the element is toxic. वो टॉक्सिक कब कहलाएगा जब कोई प्लांट टिश्यू अपना 10%, उसकी वजह से 10% ड्राई वेट कम हो रहा है और 100% वो टॉक्सिक हो। इसमें लिखा था मैंने नीड 2023, इज इट? Yes, sir. Yes, sir. बस बच्चों 5 मिनट में छोड़ रहा हूं क्योंकि अब फिर एक मैंने लिख दिया नीड 2023, या तो वो आएगा नहीं तो ये आएगा, डेफिशिएंसी आएगी नहीं तो टॉक्सिसिटी। इसमें क्या आएगा ये भी बता, वहां पर तो वो मैंने बता दिया यंग और ओल्डर में किस में आएगा। टॉक्सिसिटी के केस में मैं बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि deficiency of X may actually be the toxicity of Y। ये कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं, बात को समझना। ये नोट किया आपने बच्चों? Yes, sir. बात को समझिए क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी एक की डिफिशिएंसी किसी दूसरे का टॉक्सिसिटी हो सकता है। सपोज, बहुत जल्दी समझोगे आप, एक एग्जांपल मैं देता हूं। क्या लगता है आपको, घर में मम्मी पापा दादा दादी 4 लोग हैं, 4 मिनरल एलिमेंट समझो। दादी से ज्यादा क्लोजनेस बढ़ गई तो बाय डिफॉल्ट मम्मी से थोड़ी सी दूरियां बढ़ जाती, इज इट? Yes, sir. Yes, sir. मतलब एक्चुअली मम्मी से दूरियां नहीं बढ़ी है, एक्चुअली मम्मी से डिफिशिएंसी नहीं हुई है, दादी की टॉक्सिसिटी होगी, इज इट? Yes, Yes, sir. sir. गेटिंग माय पॉइंट? भाई ऐसा नहीं हो रहा कि मम्मी से कोई नाराजगी हो गई है, डिफिशिएंसी हो गई, लेकिन दादी के पास इतना समय बिताने लगे हैं कि मम्मी बाय डिफॉल्ट डिफिशिएंट होती जा रही है। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अभी नीट एस्पिरेंट के साथ बड़ी समस्या चल रही, पीसीबी 3 मिनरल एलिमेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ने बैठो तो फिजिक्स केमिस्ट्री डिफिशिएंट हो जाता है, इज इट? Yes, sir. Yes, sir. मतलब यार एक्चुअली वो फिजिक्स केमिस्ट्री की डिफिशिएंसी नहीं है, वो किसकी टॉक्सिसिटी है? Biology. Biology. तो ये तो डिफॉल्ट है ना भाई, तीनों चीजें अपटेक होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों कह रहे हैं मुझे ले लो दिमाग में, मुझे ले लो दिमाग में, मुझे ले लो दिमाग में। आप एक लेने लगे तो दूसरा डेफिशिएंट हो गया है। वो डेफिशिएंसी एक्चुअली उसकी नहीं थी, वो तो कंपटीशन हो रहा था बायो के साथ और बायो की टॉक्सिसिटी हो चुकी थी, इसलिए उसकी डेफिशिएंसी हो। पकड़ा क्या कंसेप्ट अभी वाला? Yes, sir. तो यहां पर जो आपको दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ के आपका एक स्टेटमेंट में यहां लिख रहा हूं, इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए, इसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जो इन्होंने एग्जांपल दिया है। Many a times excess of an element may inhibit the uptake of another element. For example, prominent symptom of manganese toxicity. Know that manganese compete with iron. Manganese versus iron.
पहला पॉइंट, मैंगनीज वर्सेस आयरन एंड मैंगनीज वर्सेस मैग्नीशियम, मैंगनीज विद आयरन फॉर अपटेक, ये कंपीट कर रहा है फॉर अपटेक। प्लांट तुम्हें लेगा या मुझे लेगा, किसके लिए? इसके साथ कंपटीशन है मैंगनीज का। मैग्नीशियम के साथ, एंजाइम के साथ तुम बाइंड करोगे या मैं बाइंड करूंगा फॉर बाइंडिंग। मैं आपसे कह रहा हूं 2023 का सवाल है। मैंगनीज किसके साथ किस बात के लिए लड़ता है? मैंगनीज लड़ता है आयरन से अपटेक के लिए, मैंगनीज लड़ता है मैग्नीशियम से बाइंडिंग के लिए, और मैंगनीज आल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन। मैंगनीज वर्सेस कैल्शियम, ये लड़ता है किस बात के लिए? ट्रांसलोकेशन। तो ये पूछा जाता है कि मैंगनीज कंपीट फॉर, सीधा सीधा सवाल बन रहा है, सीधा सीधा सवाल बन रहा है नीट 2023। फिर लिख दे रहा हूं मैं कि मैंगनीज कंपीट फॉर बाइंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, ये सब दे दिया जाएगा, लेकिन बाइंडिंग के लिए आंसर क्या होगा? Magnesium. Magnesium. उसमें स्टेटमेंट दिया है, thus what happens as symptom of manganese toxicity, actually with the deficiency of iron, magnesium, calcium। तो जो मैंगनीज की टॉक्सिसिटी हुई, यदि मैंगनीज ज्यादा हो, यदि इसकी हो गई टॉक्सिसिटी, तो किसकी डिफिशियंसी हो जाएगी? बोलो। अरे बोलो। Magnesium and calcium. Magnesium, calcium. यार सर, ये आवाज। डिफिशिएंट हो जाएगा ना। Yes, अब ये sir. कंपीट कर रहा है इनसे, ये हो गया ज्यादा, तो बाय डिफॉल्ट ये सब क्या हो जाएंगे? Come. Come. बस यही कंसेप्ट मुझे आपको बताना था दोस्तों। इसके बाद केवल एक चीज बचती है, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट विल डील इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहीं से शुरू किया था। Yes, sir. Yes, sir. दोस्त इसी के लिए रुका था मैं, आया क्या समझ में? यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा बस में जब सिस्टमेटाइज करना है, कॉर्नर कॉर्नर चलना पड़ेगा तो अच्छे से हो जाए। पहले मैंने आपको ये बताया सारा रिव्यू, उसके बाद मैंने आपको टॉपिक्स बताए, उसके बाद हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स के बाद क्या हुआ था अपना सेकंड पॉइंट? Criteria of essential. क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, हाइड्रोपोनिक्स, देन क्राइटेरिया, देन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, टीम, और फिर मैंने आपको बताया टॉक्सिसिटी और डिफिशिएंसी। अंडरस्टूड? Yes, sir. मतलब अब इसका सिंपल स्क्रीनशॉट यदि ले लिया जाए तो काम अपना हो जाएगा, आपको इसकी भी जरूरत है, इसको थोड़ा सा बड़ा किया है। परफेक्ट। Yes, sir. So you enjoyed today's session? यस सर। Yes. Yes, sir. मैं आनंद लिया स्मार्ट बोर्ड पर बच्चों, मजा आएगा, थोड़ा सा नया नया सीखते रहना हमें, और क्या, यही मैंने कल आपसे कहा था, डार्विन्स थ्योरी है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सीखेंगे तो जिएंगे, जिएंगे तो बढ़ेंगे, और नहीं तो डायनासोर खत्म हो गया तो आप और मेरी तो क्या ही बिसार है ना। चलिए, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। असाइनमेंट लिखा है कहीं? असाइनमेंट लिखा है? इज इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. इस पूरे को यदि मैं चाहूं तो एक स्क्रीनशॉट लेकर आपको भेज सकता हूं, जिससे आपको पूरा एट वन वो मिल जाएगा। Sir, or else you can send this in PDF form. क्या बच्चों बोलो? Sir, you can send this in PDF form also. हाँ, यस, उसका पीडीएफ बना ले रहा हूं मैं, नो प्रॉब्लम, और वो शेयर कर दूंगा आपसे। चलिए, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।